Hello students, today we will study about components of environment. This is our lesson number 1. What is environment? Environment is in true sense can be defined as all that surround us. Environment is our basic life support system. It provides us the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land on which we live. It also includes plants and animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living. Thus, our environment has both natural and man-made elements. The natural environment can be further divided into two groups: the physical environment and the biological environment. The physical environment includes all known living things like land, water, and air. And the biological environments include all living things such as plants and animals. Man is the most important component of the biological environment because it satisfies all the required needs from both parts of the environment, means physical environment and biological environment. As we can see here, natural, man-made, non-living, living, but these are interdependent on each other. They cannot separated. Okay, so the two components of natural environment, that is physical and biological, are largely interdependent and cannot be separated. Any major change in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. Okay, मीन्स कि अगर फिज़िकल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज होगा. अगर हमारी लैंड, वाटर, एयर, इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली हमारा जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या हम खुद ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम सब पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा. ओके, एंड द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल. जो भी चेंज होता है वो एकदम से भी हो सकता है और ग्रेजुअल जो धीरे धीरे होता है. फॉर एग्जाम्पल, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our senses. Means अगर soil में कोई भी change होता है तो हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही gradual होता है, वो धीरे धीरे होता है. But on the other hand, some changes are very sudden, like earthquake, volcanoes, etc. Okay, because we can visualize through our senses, but if there is any change in the soil, we cannot visualize through our senses, we cannot feel that, but we can see with our eyes, like earthquake or volcano eruption. Okay, so इस तरह के changes को हम देख सकते हैं अपनी आँखों से. Then there are 4 spheres of environment. How many types of spheres of in our environment? So there are 4 spheres of our environment. That is lithosphere, जिसे हम जियोस्फीयर भी कहते हैं. लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर and atmosphere, and then biosphere. We can see here lithosphere, solid earth; atmosphere, gases, means the air; hydrosphere, all water; biosphere, all life. And these 4 spheres include our earth. Hydrosphere, the water on the surface of the earth in oceans, rivers, lake, rains and mist. This is called hydrosphere. Hydrosphere is related to water. Then biosphere,
लिविंग मैटर ऑन अर्थ, ओके इसे हम बाद में करेंगे, पहले हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, द अर्थ क्रस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, द अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग लैंड फॉर्म्स, रॉक्स एंड सोइल्स, ओके, एंड देन एटमॉस्फेयर, ये जो आप देख रहे हैं स्काई, एटमॉस्फेयर, द थिन फ्रेगाइल लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ, एंड इन तीनों से मिलकर जो ये बीच वाला हिस्सा है, तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये वाला सर्कल भी इंक्लूड है, इसमें ये वाला सर्कल भी इंक्लूड है और ये वाला सर्कल भी इंक्लूड है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूड है, लिथोस्फीयर भी इंक्लूड है और एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड है। तो ये जो स्फीयर बनता है इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, मीन्स लिविंग मैटर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट एंड एनिमल लाइफ फॉर्म्स। Each of these is unique in its own way and support others in sustaining life forms on our planet called the Mother Earth. Let us understand the importance of each sphere of the natural environment. The first is lithosphere. The literal meaning of the lithosphere is a sphere of rocks. Lithosphere. Litho means rocks. Okay. लिथो का मतलब है रॉक, तो द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ओके, द लिथोस्फेयर इज 100 किलोमीटर इन थिकनेस। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड कॉल्ड सियाल। We can see here the सियाल, the uppermost, जो इसकी पार्ट है, जो अपर मोस्ट इसका जो पार्ट है हमारी लिथोस्फेयर, देखिए ये हमारी सारी लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम सियाल कहते हैं। सियाल, सियाल मतलब Si+Al, Si मीन्स सिलिका एंड Al मीन्स एल्यूमिनियम। ओके, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम इज कॉल्ड सियाल। और सियाल के बाद बिलो द सियाल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड सीमा। सीमा मीन्स Si+Ma, सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम दोनों से मिलकर सीमा बनती है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे लिथोस्फेयर के पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि सीमा और सियाल। ऊपर वाली जो क्रस्ट है अबाउट 100, ये जो पूरी 100 किलोमीटर तक जो फैली हुई है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो सियाल है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है वो सीमा है, ठीक है, विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओशियन बेसिन, ओशियन बेसिन की जो नीचे वाला पार्ट है, जो धरती वहाँ पर होती है, वो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर हम रह रहे हैं उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, यानी कि सियाल, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है। आप अभी जहाँ बैठे हैं, आपका घर बना हुआ है, वो सियाल है, ठीक है, इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और जो उसके नीचे जैसे कॉन्टिनेंट है, ये सॉरी, और जो ओशियंस हैं, ओशियंस के नीचे भी तो धरती है, कहीं तो ओशियन की गहराई के नीचे जाके भी तो धरती है ना, तो वो क्या है, वो है सीमा, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड्स अस लैंड ओवर विच वी लिव। इट प्रोवाइड्स सोयल फॉर द प्लांट्स एंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ, ठीक है। तो लिथोस्फीयर अगर हम रहना चाहते हैं तो लिथोस्फीयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिथोस्फीयर के बिना हम धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड देन द सेकेंड वन इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्फीयर ऑफ एयर, गैसेस का बना हुआ होता है। द एटमॉस्फेयर इज composed of a mixture of gases which forms an envelope around the earth. It is a gaseous envelope extending about 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है अबव द अर्थ सरफेस, यानी जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाला पार्ट है ये सारा का सारा जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट है,
ठीक है, ये गैसियस है और ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। Among the four major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from one season to another but also within a short period of time, say a few hours. These sudden changes produce changes in atmospheric conditions which affect our life both directly and indirectly. मीन्स की जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एयर हमारे ऊपर जो फैला हुआ है, तो उसमें चेंजेस जो होते हैं वो एकदम से भी हो सकते हैं, बाद में। जैसे कि आप देखिए कि क्या पता 1 घंटे पहले, 10 मिनट पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उसके बाद आसमान में बादल आ जाए, बारिश आ जाए, तो उससे क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वेदर जो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्लाइमेट और वेदर के अंदर यही डिफरेंस होता है बेटा, कि क्लाइमेट में तो हम क्या करते हैं, क्लाइमेट तो होता है कि किसी चीज़ का क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है, और वेदर होता है एक शॉर्ट टर्म होती है वेदर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म वर्ड होता है, मतलब वेदर क्या पता 1 मिनट पहले तो गर्मी वाला होता है और क्या पता बारिश आने के बाद 1 मिनट बाद ठंड वाला भी हो जाता है। तो वेदर तो एक शॉर्ट टर्म का वर्ड है और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म का वर्ड है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चेंज होगा, उससे जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो भी चेंज होगी। ठीक है, और ये हमें इफ़ेक्ट करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। और उसके बाद हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन oceans, rivers, lakes और द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर पानी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर, लेक, सीज और ओशियंस, इसके अंदर हमारी अर्थ की सरफेस का टोटल 71% है। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारा जितना पानी है हमारी अर्थ के ऊपर, यानी जो टोटल हमारी अर्थ की वॉल्यूम है उसमें से 71% जो है वो पानी है। ठीक है, बाकी का जो 29% है वो क्या आता है, जो हमारा ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वगैरह जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं वो आता है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 43%, जो 43% जो टोटल पानी है 71%, उसका जो 43% है टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर देखिए 43% जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, देखिए हमारी अर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर। और अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, तो ऐसे भी ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम देखें तो 43% जो है पानी टोटल वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 57% है टोटल। अगर आप अर्थ के मैप को देखेंगे बेटा, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर पानी, जो ओशियंस हैं वो ज़्यादा है। आपको नीचे देखना, वर्ल्ड का मैप अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे सबसे ज़्यादा नीला नीला दिखाई देगा और ऊपर कम दिखाई देगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि 43% जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 57% जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है टोटल। और रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, और जो बाकी का जो पानी है, मतलब ये तो हमें सिर्फ ओशियंस में नज़र आता है। ठीक है, तो बाकी का जो पानी है वो कहाँ कहाँ है? जो ओशियंस हैं उनके अंदर 96.5% जो है वाटर है। बाकी का जो पानी है, जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, वो अवेलेबल होता है हमें इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड इन रिवर्स एंड इन लेक्स। ठीक है, तो मतलब कि टोटल हमारा जो 96.5% तो हमें ओशियंस में मिलता है जो बिल्कुल पीने लायक नहीं है, और बाकी जो बचता है वो पानी यानी 3.5%
उसमें हमारी आइस भी आ गई, हमारे वाटर वेपर भी आ गए, अंडरग्राउंड वाटर भी आ गया, रिवर्स, लेक सब आ गया, ठीक है। तो उसमें भी सारा कुछ पीने लायक नहीं है। जैसे आइस जो ग्लेशियर्स हैं उनको हम पी थोड़ी सकते हैं, है ना। वाटर वेपर को भी हम पी नहीं सकते हैं। तो उसमें से सिर्फ 1% पानी ही बच जाता है जो पीने लायक है, 1% भी पूरा नहीं बचता। And now the main last component is biosphere. Biosphere मतलब कि जीवन, लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। तो बायोस्फीयर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर एंड प्लस लिथोस्फीयर, तीनों को मिलाकर हमारा बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। जो बायोस्फीयर है लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। Biosphere is a narrow zone of contact between all the other three spheres of environment where all kinds of life exist, means hydrosphere plus lithosphere plus atmosphere. Most of the living organisms like plants, animals, microbes present on the earth are found on or near the earth's surface, the land, water and air. Human beings are an important part of the biosphere. They are capable of changing it. ठीक है, और कर रहा है जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग है, वो बायोस्फीयर के अंदर चेंजेस कर रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सोयल पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो हमारा बायोस्फीयर है उसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आज के टाइम में बिल्कुल जो बर्निंग इश्यूज़ हम जिनको कह सकते हैं, वो सिर्फ इन्हीं वजह से है। बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स की वजह से ही आ रही हैं। So the earth is full of diversities, biodiversity. There is diversity in land, soil, plants, animals. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ प्लांट्स हैं जो हमें, कुछ एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो हमें वाटर में मिलते हैं, कुछ लैंड पे मिलते हैं, कुछ एयर में मिलते हैं। तो सब जो है सब मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। और दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. These changes create biodiversity on the earth. बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरह का जीवन जो हमारी धरती के ऊपर है। लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी को कौन ख़त्म कर रहा है? इंसान, ह्यूमन बींग्स ख़त्म कर रहे हैं। अपने लालच में आकर वो किसी का शिकार करते हैं, उनका मतलब हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी किसी की स्किन, किसी के बाल, किसी का कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो इंसान है उनका शिकार कर रहा है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 to protect and conserve this biodiversity. Under this act, poaching and hunting are prohibited. Okay? कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, कोई भी किसी एनिमल के ऊपर शोषण नहीं कर सकता, उसे नहीं मार सकता। और अगर कोई इस एक्ट को वायलेट करता है, यानी कि कोई इस एक्ट को नहीं मानता है, then he will be punished by the law. Okay? Because violation of this act is a punishable crime under law. And it is not only the duty of the government to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible. हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। हम सभी को बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी बर्ड्स को, सभी एनिमल्स को ये पूरा राइट है। इस धरती पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही एनिमल्स का भी है, ठीक है, उतना ही बर्ड्स का भी है। तो हमें भी उनको उनकी लाइफ फ्रीली जीने देना चाहिए। Violation of this act is a punishable crime under law. और ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, हम सब की ड्यूटी है कि हम हमारी वाइल्ड लाइफ, जो हमारी चाहे वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी हम रिस्पेक्ट करें, ठीक है। Some critically endangered species of animals in India are like forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India to protect biodiversity. Human beings, as an important part of the environment, are well equipped
to exploit, consume, or utilize different plant and animal species exist on the earth's surface. It is the need of the present times that we should live in harmony with our surroundings. This will allow the earth to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time. तो ये हम सब की ड्यूटी है कि हम हमारे जितना जितना हमारा राइट है इस अर्थ पे रहने का, उतना ही उनका भी राइट है इस अर्थ पे रहने का। सो इसीलिए हमें उनको भी समान अधिकार देना चाहिए और अपने ग्रीड के लिए उन लोगों को, उन एनिमल्स को, बर्ड्स को तंग नहीं करना चाहिए, उनकी हंटिंग नहीं करनी चाहिए और हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। So this lesson has been completed and you will have to find out the question answer and exercise of this lesson. Till then, bye bye.